Good morning students, class 7 science. Today's topic is chapter 1st, nutrition in plant. All living organisms, animals and human beings are completely depend on plant. So plant is very important for to survive us and animal too. Plant is the only living thing that they make food themselves. How to make their food? So continue food making process in plant. प्लांट ही एक ऐसा है जो अपना खाना खुद बनाता है और एनिमल और ह्यूमन बीइंग दोनों कम्प्लीटली डिपेंड ऑन प्लांट. सो फूड मेकिंग प्रोसेस प्लांट. सबसे पहले आता है क्लोरोप्लास्ट. फर्स्ट टॉपिक इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन पिगमेंट विच प्रेजेंट्स ऑन लीफ. जो लीफ में ग्रीन पिगमेंट होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और इसी को क्लोरोप्ले भी कहते हैं. Without any green substance they cannot make food. That is why human being and animal are not prepare their food themselves because absence of green pigment. बाकी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए अपना खाना खुद नहीं बना पाते क्योंकि उनके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है. What is green pigment? Green pigment is a sheet to protect harm energy, harm light from the suns, and it cover up the food making process under it. Next is stoma. Every leaf have a tiny pores in which pores have presence H2O and when the stoma is open like that, when stoma is open in which air, sunlight are completely in. So the open stoma is necessary to absorb sunlight and air. What type of air they absorb it? Carbon dioxide, which is we exhale it. It is carbon dioxide, and which is we inhale. They left it oxygen. जो इन लोग ऑक्सीजन को छोड़ते हैं वो चीज़ हमें रिक्वायर होती है और जो हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट अवर माउथ नोज, वो गैस वो जो एयर है वो इन्हें अपने लिए इनहेल करनी होती है फॉर लिविंग, फॉर मेकिंग फूड प्रोसेस. नाउ एवरीवन सी द डायग्राम. सनलाइट, what is the raw material to process of food making in plant? First of all, sunlight. Second, soil, water, air which means carbon dioxide, and chlorophyll. Chlorophyll means green pigment, means green color. Next, this is a process to take all these things. All these things are combining together with the help of photosynthesis. What is photosynthesis? All these things are combined is called photosynthesis. Next topic is factor affecting photosynthesis. क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन सबको एक साथ नहीं रख पाती हैं या जो ये कुछ ज़्यादा कम होने की वजह से कभी कभी कुछ प्लांट्स डेथ हो जाती है, कुछ प्लांट्स या वो मुरझा जाते हैं. तो वो किन कारणों की वजह से है? फैक्टर अफेक्टिंग रीजंस आर टेम्परेचर. व्हेन एवर वार्म टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, नॉट डायरेक्ट रिएक्शंस. Plants need light. Every plant needs sunlight after few hours. अगर plants को sunlight नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे. So temperature, warm environment, lights is necessary to make food plant. और plant एक ऐसा है जो खुद फूड बनाता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं हो सकता. उसे खुद का खाना खुद बनाना है. अगर वो खुद खाना नहीं बनाता है तो वो किसी और से, जैसे हम लोग एनिमल से फूड ले सकते हैं, प्लांट से फूड ले सकते हैं, लेकिन वो किसी से भी नहीं ले सकता. उसे ये चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ती हैं. और ये फैक्टर अफेक्टिंग कहाँ होता है? फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग इज टेम्परेचर. व्हेन सनलाइट not take it properly or not given it properly, then they affect it
when sunlight is very harm to dry their leaves. बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है तो उस वजह से वो पत्तियाँ ड्राई हो जाती हैं, इस वजह से भी. सो टेम्परेचर इज़ अफेक्ट टू प्लांट, फ्रॉम प्लांट टू प्लांट. सेकेंड, light intensity. Photosynthesis almost in linear. It means it is limited, not more than light show. For example, in day-to-day life, we have 12 hours for we live in light, and 12 hours at night, at dark. अगर हम इस सिचुएशन को चेंज कर दें कि हम 24 घंटे के लिए लाइट ही रखें, तो भी जो फोटोसिंथेसिस है जो इन सबको कंबाइन नहीं कर पाएगा. नेचर ऑफ लाइट. ब्लू एंड रेड रीजन विजन फोटोसिंथेसिस. कलर, अगर प्लांट को किसी तरह की डिसीज़ हो जाती है, फॉर एग्जांपल दे शेड इन येलो इन कलर, दे शेड इन रेड. सम लीव्स आर, यू ऑलवेज सी दैट some leaves are in yellow color, some leaves red, some leaves maroon, some leaves all these are natures of light. लाइट्स की वजह से, लाइट के नेचर की वजह से, लाइट्स किस समय में उनको कैसी लाइट्स चाहिए. कुछ प्लांट्स को लो लाइट में ज़्यादा इजी रहता है, कुछ प्लांट्स को हाई लाइट में डिफ़िकल्टीज होती है. लाइक ऑल दैट. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Two main substance, carbon dioxide and water, is also necessary to factor affecting photosynthesis. For example, अगर हम किसी पौधे को पानी नहीं देते हैं या उसे वो हवा ही नहीं देते कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो सर्वाइव कर पाएगा नहीं, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा. 3 मेन सब्सटेंस चाहिए रहते उन्हें, वाटर, सनलाइट एंड एयर. और अगर हम सनलाइट भी उन्हें प्रॉपर ना दें, कभी हार्मफुल दें, कभी ना दें, कभी वाटर दें, कभी ना दें, तो इससे क्या होता है, प्लांट डेड हो जाता है. सो क्योंकि ये फूड नहीं बना पाते. नेक्स्ट टॉपिक इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट अपना खाना खुद बनाए. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर इंसेक्ट्स और अदर क्रिएचर्स सच लाइक पीचर्स. पीचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो अदर प्लांट्स पे, जो अदर इंसेक्ट या ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है. यू कैन सी इट इन फिगर 1.8. द लुक लाइक अ पिक्चर्स प्लांट. नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोग्राफी. स्पेक्ट्रोटिक प्लांट एंड स्पेक्ट्रोट्रॉफी. ये कौन से प्लांट्स होते हैं? ये डेड और डिक्लेयर ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं. जैसे कि कुछ प्लांट्स या कुछ चीज़ें डेड होती हैं जो रीमेक नहीं होती, जो ज़्यादा वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से डैमेज होती हैं, डेड हो जाती हैं, फाउल स्मेल आती है उसमें से. उस तरीके में उस एटमॉस्फेयर में एक प्लांट उगता है जिसे हम फंगस भी बोल सकते हैं, मशरूम भी बोल सकते हैं. ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिड जो क्लाइमेट होता है, उमस वाला मौसम, या आप इसे बोल सकते हैं कि जब ज़्यादा वार्म होता है अचानक से, तो ये वाले फंगस उसमें ग्रो करने लगते हैं. और ये तब ग्रो करते हैं जब वो चीज़ डेड हो जाती है, जब वो यूज़ थ्रू हो जाती है. ओके, तब ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ये ग्रो करते हैं उस पर. और ये उनका न्यूट्रिशन इन प्लांट है कि वो डेड ऑर्गेनिज्म से जो उनके अंदर जो भी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक ब्रेड डैमेज हो गई है, ब्रेड में फंगस लग गया. फंगस कब रखते हैं? जब वो काफ़ी टाइम से किसी वार्म या ह्यूमिड क्लाइमेट में रहे. जैसे कि अगर उसे ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं ब्रेड को 4-5 डेज़ के लिए, तो ये क्लाइमेट ह्यूमिड है, अभी उमस का मौसम चल रहा है, गर्मी चल रही है, जिस वजह से वो क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्मेल आने लग जाती है, वो डेड होने लगता है. और जब डेड होता है तो उस पर्टिकुलर जो चीज़ होती है, कोई भी चीज़, उसमें से वो सारी न्यूट्रिशंस की चीज़ें लेने लगता है.
ओके। और जब वो होता है तब जाके उसमें फंगस या मशरूम जो भी चीज़ें वो बनते जाते हैं, मतलब कम्प्लीटली उसके जो गुड थिंग्स है वो एक जगह पे आके मिल जाते हैं एक न्यू बर्थ करने के लिए, और उस चीज़ का नाम है फंगस या मशरूम। ठीक है, इसे बैक्टीरिया भी कहा जा सकता है। नॉर्मली हमारे क्लॉथ, शूज़ वगैरह में देखे जाते हैं। ओके, तो टुडेज क्लास इज ओवर। I hope you can understand what is nutrition in plant. Have a good day, class.